मैं कई बार गाँव में जाता था, जहाँ मैं शॉक्ड रहता था ये देख के कि मैं पहला एमबीबीएस डॉक्टर हूँ जो वहाँ है। और अब स्थिति काफ़ी बदल गई है। 20-21 साल पहले ऐसी जगहें थी, तो वहाँ जाके ऐसा लगता था कि यू आर नीडेड, ये वो जगह है जहाँ पे मज़ा आएगा। आपने यूथ, जेंडर एंड फैमिली प्लानिंग के इंटरसेक्शन की बात की। कुछ एक या दो प्रोजेक्ट्स अगर आप हमें बताएं जो काफ़ी इम्पैक्टफुल थे। Reproductive health, issues of young people, gender. एंड एवरी टाइम आई सिट विद माई टीम एंड डिस्कस कि हमें क्या एलिमेंट्स डालने चाहिए। मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो हम सब अग्री करते हैं कि होना ही चाहिए। जी। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में इसकी अवेयरनेस अब कितनी बड़ी है और कितनी और बढ़नी ज़रूरी है? अवेयरनेस एक तरीके से मैं कहूँगा बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी बड़ी वॉइसेस अब इसके बारे में बात करते हैं, हर प्रोग्राम इसके बारे में बात करता है, आपकी मेरी हर ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में बात करती है। हमारा परिवार नियोजन कहते हैं या जो उसको सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, इंडिया में या कई देशों में वो शुरू हुआ था एक डर से कि जनसंख्या बहुत बढ़ी, पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, पॉपुलेशन गिर रही है, इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे है। तो मैं, आपने जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में कहा, गेट्स फाउंडेशन में मैं काम करता था। गेट्स फाउंडेशन की जो फाउंडर थी मेलिंडा गेट्स, उनकी जो किताब है द मोमेंट ऑफ लिफ्ट, वो बड़ा अच्छा कैप्सूल है अबाउट हाउ जेंडर इंटरसेक्ट विद हेल्थ इन अ वेरी रियल वे। तो वो मतलब एक प्रोफेशनल सेंस में वो एक किताब है जो मेरा, जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। Welcome to another episode of Impact Talks, where we celebrate incredible journey and groundbreaking work in the development sector. Today, we have the honor to have with us Dr. Abhijit Pathak, who is the Chief of Party for Momentum, Country and Global Leadership, India Yash, and Country Lead for Family Planning, Gender and Youth at Jipaigo. Over 20 years of experience in public health and policy across India and Southeast Asia, Dr. Pathak has been at the forefront of various transformative health initiatives, from managing family planning investments at Bill and Melinda Gates Foundation to serving as maternal health consultant to the National Health Mission, Government of India. So join us today as we delve into the inspiring story of Dr. Pathak and get insights from his profound lessons learned and experience of working on the ground related to intersections of youth, gender and family planning. Hi sir, thank you so much for joining us here today. Firstly, आप मुझे ये बताइए कि आप भोपाल काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं और आप यहाँ आते रहते हैं, तो कैसा लग रहा है आज वापस से भोपाल आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश में भोपाल और भी अच्छा हो जाता है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, I belong to MP and I spent a sizable amount of time studying in Bhopal. So yes, it's always a joy to. Thank you so much, and we are more than happy to have you today with us here because, as I just mentioned, that you have had such a long experience of working in public health in the development sector. तो मैं बहुत, I'm very curious to know about your journey in the public health. 20 साल आपके कैसे रहे, and what got you involved in the development sector firstly? So I think by the time I was in my third year of medical school, the community medicine subject starts very early in medical colleges, but is not sort of paid a lot of attention to in the early years. When in my medical college, luckily, where I graduated from FMC Pune. There's an NGO that is run by the department. There's a lot of on-field activity. So it was around that time that I sort of got interest into the field. Also, perhaps as an alternative to sort of the clinical medicine. जब हम लोग सोचते हैं medical practice, तो हमें लगता है कि डॉक्टरों का काम सिर्फ clinical है या patient देखना है। तो उससे एक अलग वे देखा मैंने जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैं जब वहाँ से बाहर आया, मैं भोपाल आया। भोपाल में मैं इंटर्नशिप कर रहा था। इंटर्नशिप के साथ मैंने NGOs के साथ काम करना शुरू किया, यहीं पे लोकल NGOs के साथ जो आज भी हैं कई। और उनके साथ काम करता था, कैंप्स में जाता था, जैसे एक डॉक्टर का काम होता है आमतौर पे। और उन कैंप्स के दौरान
मुझे लगा कि दिस इज समवेयर दैट आई थिंक it's a way to do good at a large scale, use your medical knowledge for public good, and at the same time it allows you a certain bit of creative freedom to explore and push the envelope in the science, because आप जहाँ पे हैं फील्ड पे तो वहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं. So I like that, and so then since then I have spent all my time working with development organizations, development projects. That's so inspiring. So, because I run an organization, so we meet a lot of stakeholders, doctors, consultants, health experts, and it's so nice to see the sector with a doctor's perspective. Because हम ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखते हैं, बट वो जो स्मॉल कैरेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं टू मेक दैट विजन इनटू रियलिटी is a very, very important thing. And therefore, we wanted to get your insights into how it is when a doctor actually enters into a development sector, and how is that different from a doctor normally working at a hospital. Jaisa aapne bataya that you wanted to provide, you wanted to give your services to the community. And that itself is so inspiring. So thank you for the work that you do. Secondly, because you just mentioned that you have studied in Armed Forces Medical College. So that's one of the most prestigious medical colleges in India. How has your journey been there? And how has that, inspired you in your professional paths? So I think it's a thread of continuity. I think जो आपने बात कही कि जो भी डॉक्टरी में जाता है या जो भी आर्मी में जाता है, दोनों ये चीज़ों के लिए एक सेंस ऑफ सर्विस होता है, जिसके तहत आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैं ये करूँगा. तो वो जो सेंस ऑफ सर्विस है वही उसी को सर्व किया है मैंने. मतलब उसके अलावा सो wherever I could find an opportunity where I could continue to do that service and yet आजीविका भी चलानी है, तो if I can do that, तो I tried it. The difference actually, देखिए कई तरह का काम होता है डेवलपमेंट सेक्टर में. एक होता है जो क्लिनिकल तरह का होता है, जिसमें कि गाइडलाइंस हैं, नई वैक्सीन्स हैं, नई दवाइयाँ हैं जो WHO जैसी संस्थाएं करती हैं, जिसमें कि टेक्निकल नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज की बहुत आवश्यकता है. दूसरा एक तरीका होता है, दूसरा एक स्ट्रीम है जो पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स का स्ट्रीम है, जिसमें कि रिसर्च की जाती है, और उसमें भी काफ़ी सारा रोल अदा करते हैं डॉक्टर्स. और तीसरा जो है एक काफ़ी लेफ्ट आउट सा स्ट्रीम रहा है डेवलपमेंट सेक्टर में, वो है मैनेजमेंट का स्ट्रीम, जिसमें कि आप पूरी हेल्थ सिस्टम्स को या बड़े हेल्थ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, और कैसे उसमें डॉक्टर्स अपना रोल निभा सकते हैं. बट इन एनी केस देखिए, प्रोफेशनल जर्नीज मेरा ही मानना है कि काफ़ी इट्स अ मैटर ऑफ अनलर्निंग. सो जब हम मेडिकल कॉलेजेस में जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं उसको हम लोग बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ कहते हैं. इट्स कि बायोमेडिकली या बायोलॉजिकली क्या हो रहा है डिजीज़ में. पर उसके बाद डिजीज़ के और भी अन्य मॉडल्स हैं दुनिया में, जो एक सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है. तो वो आप धीरे धीरे उसको लर्न करते हैं, अपने ओरिजिनल बायसेस को अनलर्न करते हैं, और आई थिंक दैट्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट. That's great actually, because हम लोगों ने थ्रू आवर वर्क, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया जेंडर पे हमारा काफ़ी काम रहता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं दैट एनीथिंग एवरीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू गर्ल्स, वुमेन्स एंड देयर लाइफ, वी ट्राई टू टच अपॉन ऑन दोज इशूज़, वेदर इट इज़ एजुकेशन, हेल्थ. तो जब हेल्थ की बात आती है तो हमारा फोकस मेंस्ट्रुअल हेल्थ, सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे रहता है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन जैसे आपने बताया कि एक सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, हम वो पर्सपेक्टिव से काम कर सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड वी डू नॉट हैव दैट मेडिकल बैकग्राउंड, बट वी डू हायर हेल्थ एक्सपर्ट्स, सो वी नो कि वो गाइडेंस एंड वो एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द सक्सेस ऑफ एनी प्रोग्राम. नाउ कमिंग बैक टू, बिकॉज हम काफ़ी डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों को यहाँ इंटरव्यू करते हैं, और जो मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन होता है इज़ बिकॉज एवरीबडी हु चूजेस टू वर्क इन दिस सेक्टर has a purpose, has motivations, आपके लिए आपका वो motivation क्या था, वो purpose क्या था इस sector में आने का, या who has played a pivotal role in guiding you towards this?
मोटिवेशन पहले तो ग्रेविटेशन था थोड़ा सा। अगर आप आज मुझसे पूछें तो मेरी एक बेटी है 8.5 साल की, न्यूरो डाइवर्स है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है। तो मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि मेरा एंड क्लाइंट जो है अब एक छोटी लड़की विद न्यूरो डाइवर्सिटी है। लेकिन इसेंशियली जैसा मैंने कहा कि एक अगर वक्त, if I have been given some abilities and some capacities by the luck and good fortune of a good education and whatever I have accumulated, the idea is to have scale and impact as much as you can in your sort of lifetime, as well as the bandwidth that is given to you. So I think वो बहुत important है to see how you can maximize your impact. But yes, I think motivation मेरा रहा सबसे ज़्यादा। मैं बहुत अर्ली इन माई करियर, जैसा मैंने आपको बताया, जब मैं कैंप्स कर रहा था तो मैं कई बार गांव में जाता था ऐसे, जहां मैं शॉक्ड रहता था ये देख के कि मैं पहला MBBS डॉक्टर हूँ तो वहाँ है पहला, मतलब इनके इतिहास में। और अब स्थिति काफ़ी बदल गई है, काफ़ी 20 सालों में, लेकिन 20-21 साल पहले ऐसी जगहें थी तो वहाँ जाके ऐसा लगता था कि यू आर नीडेड एंड ये वो जगह है जहाँ पे मज़ा आएगा। तो that was essentially the motivation, I suppose, and those people were the guidance forces that made me do it. Of course, later on I gravitated into, like I said, reproductive health, issues of young people, gender, because that is to me a final frontier. Abhi World Population Day aa raha hai. So again, these discussions will come to fore. But I do think that आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया में तो काफ़ी प्रोग्रेसिव इनफैक्ट पॉलिसी एनवायरनमेंट है कई मामलों। लेकिन आप US में देख लीजिए, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली ये डिबेट है कि क्या महिलाओं के पास उनकी खुद के प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जो अधिकार होने चाहिए वो है क्या, आर देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स विद अमेरिकन वुमेन। देन सिमिलरली आप आयरलैंड ले लें, आप कोई भी और देश ले लें, काफ़ी जगह पे आज भी ये फाइनल फ्रंटियर है जहाँ पे हेल्थ, सोसाइटी एट लार्ज, नॉर्म्स, हमारे जेंडर नॉर्म्स, हमारे बायसेस, ये सब एक साथ काम करता है। और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ विल, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द फाइनल फ्रंटियर वेयर वी सॉल्व लॉट ऑफ आवर क्रॉस कटिंग इश्यूज। Wow. Thank you for sharing that with us. So, other than work, let's talk about your personal interest and your hobbies. कुछ आपके hobbies हैं that you manage to do with your work or you like doing in your pastime, or what are you really passionate about other than the work? I like to read. Of course, time is a big issue. I like to travel whenever I can with my family, preferably by road. I do, enjoy a little bit of writing, which I don't get time for. But yes, the good thing with my job is that I get to travel. So either for work or, in my leisure time, I am usually traveling. So I'm reading. But Great. And in my younger days, though, here, because we are in Bhopal, I used to do, theater, and my grandfather, who used to live in Bhopal, used to work in Bharat Bhavan and other places. Wow. So I used to do small things with him when I was young. I did I hosted a few quiz shows at Doordarshan Kendra here in Bhopal. A bit of that. Great. Any particular books, articles, or any documentaries you'd like to share with us that has significantly influenced your life or the work that you do? In work? Yeah. So or generally in life as well also, like, if there's anything that you want to share. Yeah, I mean, I think there's a lot of books, depends on which perspective, what time you're looking for. But I think मेरे बचपन में जो I read a lot of Hindi literature, and that sort of is very important, I think. So I think I'll not say anything in between that, but जो हमारा हिंदी लिटरेचर है, खासकर
अराउंड द इंडिपेंडेंस एरा का, बहुत ही अमेजिंग है, उसको पढ़ना चाहिए। उससे काफ़ी पर्सपेक्टिव मिलता है। जो डिबेट्स आज भी चल रहे हैं अबाउट हाउ डेवलपमेंट शुड लुक, व्हाट इज liberalism, what is how should an economy behave, and so on. So that is one. In terms of सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैं आपने जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में कहा, गेट्स फाउंडेशन में मैं काम करता था। गेट्स फाउंडेशन की जो फाउंडर थी मेलिंडा गेट्स, उनकी जो किताब है द मोमेंट ऑफ लिफ्ट, वो बड़ा अच्छा कैप्सूल है अबाउट हाउ जेंडर इंटरसेक्ट्स विद हेल्थ इन अ वेरी रियल वे। तो वो मतलब एक प्रोफेशनल सेंस में वो एक किताब है जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और उनका खुद का पर्सपेक्टिव एज अ लीडर, एज अ वुमन लीडर इन द स्पेस, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है अबाउट हाउ you can change the way you believe about sexual and reproductive health of women and so on. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। उसके अलावा आई थिंक अगेन आई वुड बहुत सारी किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ, बट आई थिंक more and more, I think there is an interest in neurodiversity, and there is a mental health sort of जो बहुत है। तो उस बॉडी ऑफ वर्क में भी मैं मतलब काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को। तो बट या जनरली दिस। आपने यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात की, एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारा काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है इन वर्किंग टूवर्ड्स इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एंड एवरी टाइम आई सिट विद माई टीम एंड डिस्कस कि हमें क्या एलिमेंट्स डालने चाहिए। मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो हम सब अग्री करते हैं कि होना ही चाहिए जी। anything around mental health which you would like to say suggest as to कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में इसकी अवेयरनेस अब कितनी बड़ी है और कितनी और बढ़नी ज़रूरी है? देखिए, कई चीज़ों में हम ये सुनते हैं कि मतलब, तो अवेयरनेस एक तरीके से मैं कहूँगा बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी बड़ी वॉइसेस अब इसके बारे में बात करते हैं, हर प्रोग्राम इसके बारे में बात करता है, आपकी मेरी हर ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में बात करती है। लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ आई थिंक जितनी वॉइसेस बढ़ती हैं उसमें उतना ही मतलब हमारे पब्लिक हेल्थ की दुनिया में एक थोड़ा वर्टिकलाइजेशन का एक फिनोमेना होता है, जिसमें कि अगर आप मेंटल हेल्थ पे अचानक आवाज़ उठेगी तो मेंटल हेल्थ जो हर किसी की ज़रूरत है उसकी जगह एक मेंटल हेल्थ का एक वर्टिकल प्रोग्राम बन जाएगा, उसका एक अधिकारी नियुक्त हो जाएगा, उसके नीचे छोटे अधिकारी नियुक्त हो जाएंगे, तो एक वर्टिकल बन जाएगा। ऐसा ही जेंडर के बारे में होता है। तो जेंडर के बारे में भी ऐसा ही होता है कि कई बार आप देखेंगे कि एक मेरे जैसे किसी को उठा के जेंडर का हेड बना देंगे, और बाद में 10 और प्रोग्राम होंगे जहाँ पे ज़रूरत है जेंडर। हाँ, तो कि अलग अलग प्रोजेक्ट लीड्स होंगे। एग्जैक्टली और ऐसा ही हर जगह होगा, ऊपर भी ऐसा ही होगा, डिपार्टमेंट भी ऐसा। तो ये जो वर्टिकलाइजेशन का एक फिनोमेना है, इसके कारण बड़ा प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप एक हॉरिजॉन्टल कॉन्स्ट्रक्ट में मेंटल हेल्थ को सोचे तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी नीड है। अगर आप ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज डेटा सेट है, फ्रीली अवेलेबल है, खेल सकते हैं उसके साथ इंटरनेट पे जाके, उसमें देखें इस एज ग्रुप के बारे में, खासकर यंग एज ग्रुप के बारे में आज की डेट में सबसे बड़ा बर्डन ऑफ डिजीज जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सब्सटेंस अब्यूज, सेल्फ हार्म, काफ़ी बर्डन है यंग पीपल पे, आई थिंक। बट अगेन, इसको मैं जो वर्टिकल वाली बात ही कह रहा था, ये काफ़ी कुछ लिंक्ड होता है। मतलब आप किस इकोनॉमी से गुजर रही है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, जॉब्स ऑन ऑफर क्या है, यंगस्टर्स के एस्पिरेशंस और अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में मिसमैच क्या है, बैरियर्स क्या है, किस किस्म का एनवायरनमेंट है आसपास, वो सब का एक असर पड़ता है। तो आई थिंक अगर हम हॉरिजॉन्टल तरीके से सोचें और हर किसी के लिए एक इम्पेरेटिव हो जाए कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ तो करें। अब आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें एक वर्क प्लेस में आपस में कर सकते हैं। तो लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स ग्रोइंग एंड आई एम हैप्पी दैट द कन्वर्सेशन इज ग्रोइंग। ग्रेट। बिकॉज आपने बताया पब्लिक हेल्थ में आपने कम्युनिटीज़ के साथ बहुत सारा काम किया है। आई एम रियली लाइक क्यूरियस टू नो मोर अबाउट अगर आप हमसे एक या दो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स शेयर करें जिसका काफ़ी लास्टिंग इम्पैक्ट रहा हो आपकी लाइफ में भी एंड
ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें कम्युनिटीज़ में भी, जी जी। अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हमसे शेयर कर सकते तो सबसे पहले तो मैं जिस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ, आई थिंक जो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग USAID कहते हैं, उनका फंडेड एक काफ़ी बढ़िया और मतलब एक व्यापक स्कोप वाला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मोमेंटम, जिसके कि इंडिया पार्ट का नाम है मोमेंटम कंट्री इन ग्लोबल लीडरशिप इंडिया। ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक कलेक्शन है करीब 1 दर्जन से ज़्यादा इंटरवेंशंस का, जो इसी सवाल को, जो आपने कुछ 2 सवाल पहले मेरे से पूछा था, उसको एक्सप्लोर करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, एक 360 डिग्री अप्रोच से, अगर एक औरत के या एक युवा के प्रजनन स्वास्थ्य को देखा जाए तो उसका क्या मतलब। तो देखिए, हम अभी जैसे मैंने कहा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आ रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि जो ये मिसमैच होता है यंग पीपल के एस्पिरेशंस और अपॉर्चुनिटीज, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिस्टम की भी मतलब कंट्रीब्यूट हो जाती हैं। जैसे हमारा परिवार नियोजन कह लें या जो उसको सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, इंडिया में या कई देशों में वो शुरू हुआ था एक डर से कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर आप NFHS का डेटा देखें अभी या पिछला, इनफैक्ट अगर आप अभी लेटेस्ट लैंडसेट की प्रोजेक्शंस देखें तो पॉपुलेशन गिर रही है। इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशंस गिर रही हैं, इंडिया की भी पॉपुलेशन अब कम होने की कगार पे है। और तो इसलिए इस सब का वो जो जनसंख्या विस्फोट के डर से वो था, एक मैसेजिंग था, अब उसका कोई सेंस नहीं बनता किसी। उसी तरह उसके बाद हमने सबको जिस तरह से एक पैकेजिंग की कि अच्छा ठीक है, अब जनसंख्या नहीं है तो चलो अब मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, IMR MMR की भी बात और TFR की भी बात करते हैं कि फर्टिलिटी रेट, और ये अब ये TFR भी हमारा घट गया है, IMR MMR भी हमारे बहुत प्रोग्रेस किया है इंडिया, और जिस लेवल पे अब वो हैं, अब जो है हमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड स्पेसिफिक एक्शन उस पर कर रही है सरकार, जिससे कि वो और अब धीरे धीरे कम होंगे, बट अब वो रेलेवेंस भी खत्म होता जा रहा है। तो अब हम असली में जो असल रेलेवेंस था इन सर्विसेज का यंग लोगों के लिए, अब उसको हम खोल पा रहे हैं। और वो क्या था? वो ये था कि आज तक किसी युवा ने किसी भी किस्म का रिप्रोडक्टिव हेल्थ सामान इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि उसको TFR IMR या MMR कम करना था, या किसी ने भी परिवार नियोजन या किसी भी युवा ने कॉन्डम आज तक सिर्फ इसलिए प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसको IMR कम करना था देश का, या MMR कम करना था देश का, या फर्टिलिटी रेट कम करना था देश का। उसने इसलिए किया क्योंकि उसको कॉलेज करना था, या उसकी पार्टनर ने कहा कि अभी नहीं, या वो जिस इकोनॉमिक स्टेट में था उसे लगा अभी नहीं है, एक्सेट्रा, एंड ऑल दीज आर नॉन हेल्थ रीजन। सो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोफाउंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज वी आर डायरेक्टली looking at intersections of sexual and reproductive health with mental health, with climate change, with intersections with gender-based violence, intersections with livelihoods, intersections with another big aspiration of young people, they want to be heard. So I think the aspiration to feel safe, the aspiration to get services, but at the same time the aspiration to be heard and to participate in processes. So I think उस पर भी हम बहुत काम तो I think it's a great learning experience. So this is, I think, one project which, as I said, I mentioned 2 or 3, but I think this is a profound learning experience for me, which is ongoing, about how the same person is living these lives where, all these parts are important. That's great actually, because you spoke about intersections. हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं MP में, एंड हमने क्लोजली गवर्नमेंट के साथ यहाँ बहुत काम किया है. वी वांटेड टू वर्क विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वी वांटेड टू वर्क विद आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स. सो इन लोगों के साथ काम करना एंड टू गिव देम दोज इंटरसेक्शन वाला एक आउटलुक टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग दो स्कीम्स एंड पॉलिसीज इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. आपने आई थिंक आपने नेशनल हेल्थ मिशन में भी काम किया था एज अ कंसल्टेंट टू द गवर्नमेंट. सो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल में हमने गवर्नमेंट के साथ यहाँ बहुत काम किया है. तो गवर्नमेंट के साथ काम करने के काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो साथ में आते हैं. आई रियली वांटेड टू नो इट फ्रॉम यू, बिकॉज यू वर वर्किंग क्लोजली विद देम एज अ कंसल्टेंट. What are the perks and the I mean the disadvantages? No, so
देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। गवर्नमेंट के साथ काम करके अगर एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो, और जो भी हम काम करते हैं हमें गवर्नमेंट के साथ हाथ बिल्कुल ही काम करना पड़ता है, वो तो आप करना ही। कहीं से भी करें। हाँ, अब मैं हमेशा लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि ये हाथ पकड़ने का जो फिनोमेना है ये अलग अलग तरीके से काम करता है। हाथ पकड़ के ज़रूर आपको चलना है, और चूंकि डेवलपमेंट बड़ा मैंडेट, गवर्नमेंट का मैंडेट है डेवलपमेंट और वेलफेयर इंडिया, तो गवर्नमेंट का जो उत्तरदायित्व है जब वो उसको पूरा करने निकल रही है तो उसको सपोर्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है, वही तरीका है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट्स टैक्स के पैसे पे, मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे चल रही हैं। तो जब आप टैक्स ले रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उस टैक्स टेकिंग एंटिटी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके टैक्स के पैसे से एक्सपेरिमेंट करेगी। भाई आप ही कल सवाल पूछेंगे कि नहीं, अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो कि भी आपने मेरे टैक्स के पैसे को एक्सपेरिमेंट, तो आप तो जगह है जहाँ पे फॉरेन के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो फंडर्स हैं, वो आते हैं और वो एक्सपेरिमेंटेशन, वो नई चीज, वो पुशिंग द बाउंड्री, वो इनोवेशन जो है वो फंड करता है। और जैसे ही वो प्रूव होने लगता है तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेती है उसमें, और वही तरीका होना चाहिए। तो आई थिंक उसको आप चैलेंज की तरह देख लें, पर उनका भी एक चैलेंज है उस तरफ से कि you are liable to taxpayers, बट आप उनके सिस्टम में नहीं घुस सकते। हाँ, तो लेकिन फिर भी जिस किस्म के रिफॉर्म्स, जिस किस्म की चीजें चेंज जो हो रहा है, और मैं लोगों को हमेशा याद दिलाता हूँ कि हमें लगता है कि चेंज जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब हमें लगता है हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा, तो अब ये होगा, बस स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, चेंज एक्सपोनेंशियल होता है। तो चेंज की गति बढ़ती जाती है, और जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा बढ़ती है। मतलब मैं जब कॉलेज में था, अगर किसी ने मुझे कहा होता कि हम एक फ़ोन में इतना बड़ा कैमरा होगा या इस फ़ोन में आप बैठ के कुछ भी कर पाएंगे, मैं कहता है क्या बात कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। पर आज की डेट में है, तो बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, और गवर्नेंस के मॉडल्स भी उतनी जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छे, जिसको हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इंडिया ने बना लिया है, बना रहा है सिस्टम में, उसका बहुत फ़ायदा होगा आगे जाके। तो स्पीड है काम करने की। मैं यहीं पे एक्चुअली, मैं NHM दिल्ली में नहीं, मैं MP में ही NHM का कंसल्टेंट था, और मैं स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करता था, इंदौर डिवीजन में मैटरनल हेल्थ कंसल्टेंट था, और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो स्केल होती है ना, मतलब इट्स अनहर्ड ऑफ। और एक और चीज़ देखनी चाहिए हमें कि मैं जब फंडर्स की दुनिया में था तो हमें कई बार मुझे ये रियलाइज़ होता था कि जितना भी फॉरेन एड या ग्रांट मनी आता है, जितने भी फंडर्स हैं, जितने भी फंड रेजिंग हम करते हैं, वो अल्टीमेटली एक डिस्ट्रिक्ट के बजट से भी कम होता है, मतलब टोटल सम भी उसका। तो जो स्केल है गवर्नमेंट के पास, जो एबिलिटी है ट्रांसफॉर्म करने की, वो कहीं और नहीं, और इसलिए गवर्नमेंट के साथ ही हाथ पकड़ के चलना चाहिए। पर जैसा मैंने कहा कि जब मैं मॉल में जाता हूँ तो स्वीट्स की दुकान पे मेरी बेटी मुझे आगे खींच रही होती है, हाथ हमने फिर भी पकड़ा होता है। किताबों की दुकान में मैं उसे आगे खींच रहा होता हूँ। तो कई बार वो होगा, कई बार आप हाथ पकड़े रहेंगे, गवर्नमेंट जो है कई बार उसकी ज़रूरतें होंगी, कई बार वो आगे रहेगी, कई बार आप गवर्नमेंट को किसी नई दिशा में ले जाना चाहेंगे, और आपको हाथ पकड़ के उनको ले जाना है। तो आई थिंक बट आई थिंक इन अ कंट्री लाइक इंडिया इट्स इम्पोर्टेंट that everything we do should be absolutely। and जैसे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, MP में भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वेलकम करती है टू इनोवेटिव आइडियाज़ एंड थॉट्स। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लोकलाइजेशन पे काम किया था विद द पंचायत डिपार्टमेंट हियर, एंड उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को उसका कमिटी मेंबर बनाया था, एंड वी वर वर्किंग विद नीति आयोग। और वहाँ पे भी, बिकॉज हम जेंडर पे काम कर रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड भी जेंडर पे है, they wanted us to frame the gender state level policy for them to actually trust a young person with limited experience and to actually give us the platform to sit with those people who have been working for years with great experience like you, and to actually learn so much and give our insights
and participate in such platforms was amazing. And जैसा आपने बोला, ये थर्ड पार्टी फंडिंग का सिस्टम यहाँ चलता है, वो हमें भी समझ में आया है. Now we are focusing more on getting funds from different sources, and then work, government के साथ hands join करके कि okay ठीक है, we'll get money for you, but help us, support us in implementing these programs. Absolutely. And they're more than happy to do that for us. So ये dynamic अच्छा है with the government and organization. क्योंकि आपने यूथ, जेंडर एंड फैमिली प्लानिंग के इंटरसेक्शन की बात की, अब इस पे आई एम श्योर बहुत प्रोजेक्ट्स होंगे जो चल रहे होंगे. कुछ एक या दो प्रोजेक्ट्स अगर आप हमें बताएं जो काफ़ी इम्पैक्टफुल थे. तो मैं प्रोजेक्ट से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम बताता हूँ. हाँ जी. कि प्रॉब्लम कैसी है और कहाँ कहाँ है. तो आई थिंक 2 साल या 2.5 साल पहले एक CEW नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट निकाली जिसमें जिलेवार स्कोरिंग है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की इंडिया की. उसका एक मैप आप बनवा सकते हैं, है भी. तो उस मैप को अगर आप देखें और फिर आप मैप देखें जो चाइल्ड मैरिज का प्रेवलेंस का मैप है इंडिया, या आप जेंडर बेस्ड वायलेंस जो रिपोर्टेड है हमारे नेशनल सर्विस में उसका मैप देखें, तो बड़ा कॉन्ग्रुएंट सा मैप. और ये बात बिल्कुल सही है कि क्लाइमेट रिलेटेड रीजंस के कारण. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अगेन हमारे USAID मोमेंटम प्रोग्राम. उस रिपोर्ट के में लिखा है कि आसाम का जो राज्य है भारत का, वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल है. इसका मतलब क्लाइमेट इवेंट से सबसे ज़्यादा असर पड़ने का उस पर हो सकता है. और उसके अंदर आप लोग जानते हैं आसाम की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है आता है टी से, चाय. चाय का जो पौधा होता है वो भी बहुत क्लाइमेट सेंसिटिव पौधा है. तो जो चाय बागान की प्रोडक्शन है उस सब पे भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज. और वहाँ काम कौन करता है? वहाँ काम करता है मोस्टली यंग लड़कियाँ. तो अगर मेरा प्रोजेक्ट यंग लड़कियों की हेल्थ के लिए है, अगर मैं उनके लिए काम करता तो मैं कैसे नहीं देख सकता ये इंटरसेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब आप उसमें मिक्स करिए जो मैंने पहले कहा कि अर्ली मैरिजेस, क्योंकि लाइवलीहुड्स कम होते जा रहे हैं, और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि एक जिसका परसेंटेज हाई होता जा रहा है. तो ये भी इंटरलिंक्ड है इसी फील्ड से. तो वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें कि चाय बागान में हम लोग क्लिनिक्स जो हैं उनके साथ मिलके, उनकी चाय बागान की कंपनी के क्लिनिक्स के साथ मिलके वहाँ पे सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम आसाम के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ होम के साथ मिलके 10 जिलों में 10 पुलिस स्टेशन में जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए स्पेशल सेल्स क्रिएट किए गए हैं. हमारे पार्टनर हैं टेस्ट उसके साथ में. तो वो it's a 360 degree sort of a look at this problem of saying gender based violence, livelihoods, opportunities, etc. All of this is linked. So this is one side of it. On the other side of it, let me give you another example. Gender based violence हो या decision making हो या women's workplace participation हो, women का education हो, इन सब की बेस में जब आप लिटरेचर देखेंगे, खंगालेंगे, तो आप पाएंगे कि एक साउथ एशिया में पूरे एक परवेजिव सा नॉर्म है कि अब बॉय चाइल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन अ गर्ल. और इसका कंसीक्वेंस ये होता है कि सब्सिक्वेंटली मेल चाइल्ड प्रेफरेंस होता है, हायर फर्टिलिटी रेट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसके बाद जब बच्चों में भी एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, कम एजुकेशन, कम न्यूट्रिशन, कम अपॉर्चुनिटी, कम मोबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसको ब्रेक करना भी तो ज़रूरी है. अगर मैं चाहता हूँ कि यंग पीपल अपना जो एक्सेस कर सकते हैं वो करें. तो अब आप MP में ही हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ MOU है इसी प्रोजेक्ट का. और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एनहांसिंग वैल्यू ऑफ द गर्ल चाइल्ड नाम का एक प्रोजेक्ट हम चलाते हैं कॉलेजेस के साथ. हमारी ये थ्योरी ऑफ चेंज है कि ये कॉलेजेस में जाने वाले, खासकर कोएड कॉलेजेस में जो अभी जा रहे हैं और जो ग्रेजुएट्स होकर निकलेंगे, वही कुछ सालों बाद अपना परिवार शुरू करेंगे और उसके कुछ सालों बाद उनके बच्चे होंगे. तो क्या हम आज जस्ट 4-5 साल पहले उनके बच्चे होने के, क्या आज हम उनको एक
बड़ी इंटरेस्टिंग ब्लेंडेड लर्निंग, ई लर्निंग काइंड ऑफ सिनेरियो बिल्डिंग सिचुएशन से निकाल के उनको ये समझा सकें कोल्ड एनवायरनमेंट में, और फिर उनसे कुछ सोशल एक्शन प्लान्स करा सकें जिससे कि उनको ये समझ में आए कि ऐसा कुछ है नहीं, कि अ गर्ल चाइल्ड इज एज वैल्यूएबल एज अ बॉय चाइल्ड, वुमेन चाइल्ड। एंड सो वो भी एक इंटरसेक्शनल प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड है। कमिश्नर हायर एजुकेशन जो है वो हमारे फंक्शन में भी आए थे, और ही वाज वेरी एक्साइटेड लुकिंग एट द डेटा, सो दैट्स आल्सो related to our so whether it's trying to break that pervasive norm at the very basal level, or whether it is trying to make sure that in areas where there is going to be climate change, climate related impact and vulnerabilities, how can you work to ensure services and access to opportunities for young people. So ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट में कर पाना बड़ा लकी है, बट इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनको मैं इंटरसेक्शंस कहता हूँ उस पर हम करें। एंड थैंक यू, आपने इंटरसेक्शंस को इतने साधारण भाषा में एक्सप्लेन किया, बिकॉज हमारे सेक्टर के लिए टेक्निकल टर्म्स ईजी हैं, बट फॉर नॉर्मल पीपल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्या इंटरसेक्शंस हैं, क्या बातें चल रही हैं, तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि हर चीज़ का इन्फ्लुएंस है एक दूसरे पर, चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में, तो वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से बताई है। एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी, LGBTQ राइट्स की जब हम बात करते हैं कितना ज़्यादा, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम्स, कितना ज़्यादा इंक्लूजन हुआ है इनके राइट्स का व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ एंड सिस्टम्स? आई थिंक इसका जवाब मैं आपकी वो जो आपने इसके पहले बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इंटरसेक्शंस, और खासकर हो सकता है आपके कई श्रोता जो इस फील्ड से नहीं हैं वो शायद इंटरसेक्शंस को हम जब बनाते हैं वाइट बोर्ड पे या किसी चीज़ पे तो वो सर्कल इंटरसेक्ट करता हुआ बनाते हैं, पर उससे ज़्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन है इंटरसेक्शंस का, एक के ऊपर एक स्टैकिंग। सो जैसे मैं अगर बिल्कुल इसी सवाल का जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब दूँ, तो देखिए अगर हम ये मानते हैं कि एक यंग पर्सन काफ़ी अंडर सर्व्ड है, उसको जो सर्विसेज चाहिए नहीं मिल पा रही क्योंकि बायस है, स्टिग्मा है, अगर मैं ये मानता हूँ तो जो तो ये एक लेवल हो गया कि मैं मानता हूँ कि यंग लोगों को अंडर सर्व्ड है, उनको जो सर्विसेज चाहिए नहीं मिल पा रही। तो जो गरीब यंग है वो थोड़ा और अंडर सर्व्ड, जो गरीब और लोअर कास्ट और वंचित और दलित कम्युनिटी से आता है और यंग है वो और नीचे, जो किसी हिली एरिया में रहता है जिसका एक्सेस का भी इशू है वो और नीचे। अब आप इस पे ऐड कर लीजिए कि जो LGBTQI है, तो वल्नरेबिलिटी स्टैक करती है और उनका वजन बढ़ता जाता है। तो इंटरसेक्शंस एक्चुअली ये वर्ड जो है जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका इंग्लिश मीनिंग हमारे दिमाग में आता है, खासकर वेस्टर्न मीनिंग जहाँ पे क्रॉस रोड्स जिसको कहा जाता है, तो वो है। पर एक्चुअली इंटरसेक्शंस आर वेरी हैवी, दे स्टैक अपॉन ईच अदर, एंड वन ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट weight of vulnerability can increase if you have a sexual orientation or a gender identity which is not normal or non-normative. So जो आपको समाज जो मेन स्ट्रीम में नॉर्मेटिव कहता है उससे अगर आप भिन्न हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी आ जाती है। तो yes, LGBTQI a population are an extremely underserved group. उसमें भी they are an extremely not just underserved, underprotected group. जैसे यंग लोग तो फिर भी ओवर प्रोटेक्टेड हैं एक तरह से, उनके लिए लॉज हैं, काफ़ी कुछ है, बट वेरी अंडरसर्व्ड, वेरी अंडर प्रोटेक्टेड, एंड ऑल्दो देयर हैज़ बीन मैसिव स्टेप्स taken both by the community themselves as well as by the policy and other environments to help them, help this situation. But I still think there's miles to go. There's still a lot of bias and discrimination and homophobia and exclusion that the community faces. And I think workplaces have their role, social organizations like mine and yours have their role, policy environment and government has its role, and the community is obviously the most important, who will lead us through this. So तो आपकी बात सुन के मुझे ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है,
but there still needs to be done when it comes to, the health services and the health related policies and schemes. What is the way forward for you? I mean, this is one of our last questions, and I really want to know, as a health expert, आपको क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए और किस चीज पे फोकस होना चाहिए सबका? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये सोल्यूशन सबको पता है, पिछले 50-60 सालों से हमारी किताबों में लिखा जा रहा है। हम ये कई बार ये वर्ड्स, खासकर आप और मैं जिस फील्ड में हैं, हम लोग ये बोलते रहते हैं। बट आई थिंक हम इंटरसेक्शन कहते हैं, हम इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस कहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस कहते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। आई थिंक हमें ये समझना होगा कि लोगों का जीवन है। आपके डिपार्टमेंट भिन्न भिन्न हो सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उस युवा का, उस स्त्री का, उस माँ का, उस बच्चे का जो जीवन है, उसके ऊपर सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। उसके ऊपर उसकी खेत में उपज सही हो रही है कि नहीं, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। उस पर क्लाइमेट चेंज से बाढ़ तो नहीं आ रही, उसके घर में उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। उसके ऊपर उसके कारण उसके ऊपर ना सिर्फ स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ रहा है, वायलेंस भी हो रहा है। तो ये तो हमें इस पे काम करना, अब कैसे करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा 50 से 60 साल से ये हो रहा है। आई थिंक इसके साथ जो एक दूसरा पुश, जिसको किताबों मैंने तो कुछ साल पहले शुरू कर दिया था, विच वॉज डिसेंट्रलाइजेशन। की ऊपर तो विभाग बहुत बड़े बड़े, भोपाल में तो बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, दिल्ली में और भी बड़े बड़े विभाग, लेकिन एक जिले में तो एक ही डीएम है जिनके अंदर सारे विभाग हैं, उसके नीचे और भी छोटा है। तो वहां पे ये इंटर डिपार्टमेंटल इंटरसेक्टोरियल कन्वर्जेंस करना आसान भी है। राइट। आशा पे सबसे आसान है, तो सब डिपार्टमेंट उसके पास आ जाते हैं। लेकिन इसको एक अच्छी तरीके से डिसेंट्रलाइज करें ताकि ये मीनिंगफुली पॉसिबल हो सके। और अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई है इस प्रोसेस में बिकॉज ऑफ डिजिटल इंटरवेंशन। तो आई थिंक as we decentralize our processes and make sure that we decentralize them in a way that transparency is there, but at the same time there's almost a forced function of interdepartmental convergence at the local level. I think if we can do that, another way to do that is to strengthen local governance. आपने पंचायती राज institutions की बात कही थी पहले, local जितना institution को हम strong कर सकते हैं। Great. Thank you so much, Dr. Pathak, for sharing these insights with us. मुझे तो लगा कि आज एक छोटी मास्टर क्लास हमने ले ली है हेल्थ पे, एंड नहीं, डेफिनेटली, एंड ये पॉडकास्ट मैं फिर से सुनने वाली हूँ बैठ के, और आई हैव द प्रिविलेज कि मैं अभी आपके साथ थोड़ा सा और बातचीत करके और चीज़ें जानूंगी। एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर कि ये तो हमने बहुत छोटी सी कम सी बात की है टू द वास्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव, एंड स्पेशली फॉर यंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस, जिनके पास बहुत ज़्यादा इंटेंशन है चीज़ों को करने का, बट वी नीड मेंटरशिप, वी नीड पीपल लाइक यू हु कैन actually guide us and tell us about these things in more detail. So thank you so much for sharing that. This genuinely means a lot for us. And before we end this, any last words that you have about the podcast or your experience or about the show or anything that you want to share for the audiences that's watching? No, so like we were talking earlier, I think I was told by Sribash and Asta, who are my team members, who have been following your podcast, and they sent me links and they referred me, and they said that you and I've been since then following, and it was great. I mean, जैसा आपने कहा, मैं भोपाल का ही हूँ, and I am really very happy with the work that you're doing. I think the kind of voices that we always had in tier 2, tier 3 cities. Now they are getting the platform that they always deserve. Right. And so I'm very happy that this is coming out of Bhopal. I'm very happy that we could meet today through our project, that I could talk about it. So yeah, and all the best to you and to your organization. Thank you so much. And Jopaigo के बारे में आपने आज बताया, वो जो project आपने बताया. So for everyone watching us today, do follow Jopaigo. They do some great work around youth, sexual health, family planning, reproductive health, and thank you so much, and we look forward to collaborating with you and Jopaigo and do some great work together. Yes. Thank you. Thank you.